Hello everyone. Today we are here with the first lecture of Unit 4 of Noble Inorganic Solids, that is nanomaterial. Today we are going to discuss very basic introduction about nano. Nanomaterial are the material with size in at least one dimension between 1 to 100 nanometer. I hope you all are aware of the nano term, that is 10 raised to power minus 9 meter. We can't see the nanomaterials or nanoparticles with our naked eyes. We have some very good properties of nanomaterial जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत यूज़ में आ रहे हैं एंड बहुत बेनिफिशियल हैं. Like first property, very important property of nanomaterial is they have high surface to volume ratio. Secondly, it is chemically very reactive. They are very hard in nature. They have high thermal and electrical conductivity, and they have less melting and boiling point than bulk. Now, nanotechnology. As we know, nanomaterial की जो भी स्टडीज़ होती हैं, एप्लीकेशंस होती है, सिंथेसिस होते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं. लाइक ऑब्वियस चीज़ है ये. नैनो टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द डिज़ाइन, synthesis and application of material whose size and shape have been engineered at nanoscale. So this was the basic definition and basic explanation of nanomaterial and nanotechnology. Now we have classification of nanomaterials. Nanomaterial is classified in 4 parts: 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. This dimension is wahi maths wala dimension. 0 dimension is just a point, location, which have no length, no breadth, no height, means no length, no width, no height. इसके जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दैट इज क्वांटम डॉट्स. सेकेंडली वी हैव वन डायमेंशन नैनो मटीरियल्स जो एक ही डायमेंशन में होते हैं. इनका बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल वी कैन से इज नैनो ट्यूब. वन डायमेंशन में होते हैं, राइट. टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स आर द वंस that have two dimensions in the nanometer range. These mainly include nano layers, nano disk. The three-dimensional nanomaterial are the material which have nanoscale in 3 dimensions, and the example include embedded clusters, aqueous crystallites. So this was the basic classification on the basis of dimensions. Now we have two techniques for synthesis. हमने ये पढ़ लिया कि नैनो मटीरियल्स क्या होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, कि किस किस टाइप में होते हैं हमारे नैनो मटीरियल, बनते कैसे आए हैं. टू अप्रोचेस होती है हमारे पास: बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम अप और टॉप डाउन से ही, इनके नेम से ही हमें पता चल रहा है. बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जाना, एंड टॉप डाउन मीन्स ऊपर से नीचे आना. नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूँ हिंदी में तो इट्स लाइक छोटे छोटे पार्टिकल से एक थोड़ा बड़ा साइज बनाना, बॉटम अप, एंड टॉप डाउन इज बड़े बड़े छोटे छोटी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाना. इनकी अगर हम डेफिनेशन देखें थोड़ी सी, टू make it more clear, is top down approach involves the breaking down of the bulk material into nano size structure or particles. टॉप डाउन में हमारा एक बल्क मटेरियल होता है, हम उसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, नैनो साइज पार्टिकल में चेंज करते हैं. बॉटम अप टेक्निक अप्लाइज टू बिल्डिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एटम बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स, कि छोटे छोटे मटेरियल से एक बड़ा मटेरियल बनाना. अब बॉटम अप अप्रोच इज मोर एक्सेप्टेबल. वाई? द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द टॉप डाउन अप्रोच इज द इम्परफेक्शन ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर. टॉप डाउन अप्रोच में हमारा एक प्रॉब्लम आती है कि जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा इम्परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि बड़ी से छोटी चीज़ बन रही है ना. एंड द बॉटम अप अप्रोच इज मोर एक्सेप्टेड इन सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स ड्यू टू more homogeneous chemical composition and better ordering. We have 3 methods of synthesis. अभी हमने techniques पढ़ी थी. Now these are methods: physical, chemical, biological. जो हमने techniques पढ़ी थी that was top down method and bottom up method.
टॉप डाउन में हमारा फिजिकल मेथड्स आते हैं, लाइक मैकेनिकल मेथड्स जो होते हैं. बॉटम अप अप्रोच में हमारे दो मेथड्स आते हैं, केमिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स आर दोज जो हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, वेट लैब मेथड्स. इसमें हमारे सोल जेल आता है, CVT, को प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोथर्मल, माइक्रोवेव एट्सेट्रा. सो एडवांटेजेस होते हैं हमारे केमिकल मेथड्स की, बहुत सिंपल टेक्निक्स होती हैं, इजी गोइंग. इन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इसमें, और कई में तो इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते, जस्ट मफल फर्नेस चाहिए होते, ओवन चाहिए होते, बाकी केमिकल्स तो हमारे पास होते ही हैं लैब्स में. लो टेम्परेचर सिंथेसिस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है इनके लिए. डोपिंग ऑफ फॉरेन एटम्स इज पॉसिबल ड्यूरिंग सिंथेसिस. डोपिंग कोई चीज़ ऐड करना, कोई और एटम्स का ऐड करना, जो भी हमने चीज़ बनाई उसमें, टू चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी ईजी होता है केमिकल मेथड्स में. लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ मटीरियल कैन बी ऑब्टेन्ड. वेराइटी ऑफ साइज एंड शेप्स आर पॉसिबल. इसमें हम अब अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, सिंथेसिस मेथड होते हैं कि हमें कौन से साइज़ के नैनो मटेरियल चाहिए, कौन से शेप के चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लैब में परफॉर्म करते हैं एंड हमें उस शेप और साइज़ के मिल जाते हैं, डिज़ायर्ड शेप साइज़ के. सेल्फ असेंबली और पैटर्निंग इज़ पॉसिबल. Now, before synthesizing, before doing anything, the most important thing is to clean the instrument, clean the apparatus. So first we do is by soap. Soap से clean करते हैं. Then DI water, that is diionized water, to remove inorganic impurities. Then we wash it by acetone to remove organic impurities. And then हम उसको dry करते हैं. So this was the basic thing. एंड अभी हमने पढ़ा कि टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं. हमने पढ़े केमिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स में सोल जेल, को प्रेसिपिटेशन, ये सब होते हैं. एंड दीज मेथड्स, केमिकल मेथड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द यूनिट 1, दैट इज सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स. इसमें हम ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे. सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अबाउट नैनो मटीरियल. We are going to study a lot more things in this unit, so stay tuned. I hope you all got this, you have understood this. Thank you so much.